Hello everyone, and our chapter, lesson number 3, a day with Nandu. And today we are going to discuss what? Yes, we are going to discuss the writing part of lesson number 3. You will get the PDF along with that, and you can complete lesson number 3 by this Sunday. Okay? So Sunday तक आपको lesson number 3 वर्कबुक में finish करना है. I am not going to discuss questions like MCQ, blanks, true or false, match the following. ऐसे questions हम discuss नहीं करेंगे. Okay? So I am going to start from question answers. So let me share the screen. So here we go. Standard 4 Science Lesson 3 A Day with Nandu. Workbook part. So we are not going to discuss question 1, 2, 3 and 4. We are going to start directly with question number 5. Answer the following questions in one or two sentences. First one, until when does a male elephant stay with the herd? એટલે ક્યાં સુધી male elephant group સાથે રહે છે? Until the age of 14 to 15 years old. He stay in herd until they become 14 to 15 years old. Now, why was Nandu afraid of going near his brothers and sister? Why Nandu was afraid to go near his brother and sister? वो क्यों डरता था अपने भाई और बहन के नजदीक जाने से? नंदू इज स्मॉल, यानी कि नंदू एकदम बहुत छोटा था. नंदू afraid because he thought that cousins may fall on him. ओके उसने क्या सोचा था कि जो उसके जो कजिन्स है वो उसके ऊपर गिर जाएंगे. ठीक है, और वो नीचे दब जाएगा. दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड टू गो नियर हिज कजिन्स. नेक्स्ट वन, फाइंड आउट एंड राइट the names of animals that live in herds. Monkey, zebra, wild buffalo, wild dogs, ants, fishes, etc. They live in herds, or you can say they live in groups. Which animals do we use for riding? यानी कि हम उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं. कौन कौन से एनिमल? We use camel, horse, elephant, etc. for riding. Which animals do we use for carrying loads and lifting weights? यानी कि सामान ले जाने के लिए और वजन खींचने के लिए कौन सा एनिमल्स हम यूज करते हैं? Donkey, elephant, camel, horse, etc. We use for carrying loads and lifting weights. यानी कि कौन कौन से एनिमल? Donkey, elephant, camel and horse. Who is Nandu? Nandu is a baby elephant. Nandu कौन था? वो baby elephant था. With what does an elephant spray a fountain of water? वो पानी का फव्वारा किसकी हेल्प से करता है? By trunk, elephant spray a fountain of water. यानी कि उसकी जो ट्रंक होता है, राइट, उसकी हेल्प से वो पानी का फव्वारा कर सकता है. How much does an adult elephant weigh? Imagine कि उसका वेट कितना होगा? It is approximately 5000 kg. यानी कि 5000 kg एक अडल्ट यानी कि बड़ा एलिफेंट का वेट होगा. Next, in what do elephants love to play? We all know elephants love to play in water and in wet mud. यानी कि कीचड़ और पानी में खेलना अच्छा लगता है. How many kilograms of leaves and twigs can an adult elephant eat in a single day? यानी कि एक पूरे दिन में बड़ा सा एलिफेंट जो होता है वो कितने किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स खा सकता है? Around 2 kgs of leaves and twigs adult elephant eat in a single day. Who all are there in your family? So this answer you can write by yourself. अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Okay? Because it is a question for you. Okay? So you can write by yourself. If you are not writing, then also it is fine. Now question number, another thing. Another question number. Answer the following questions. How do animals living in herd और ग्रुप्स लिव? वो कैसे रहते हैं? दे मूव टूगेदर इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि जब भी वो फूड सर्च करने जाते हैं तो वो सब एक साथ जाते हैं. दे मूव टूगेदर इन सर्च ऑफ फूड. दे प्ले विथ यंग वंस, यानी कि वो छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं उनके साथ वो खेलते हैं. दे लिव विथ यूनिटी, यानी कि वो एक साथ
रहते हैं, right? Whenever there is any problem, they will stand together, they will help each other, okay, in any kinds of problem or difficulties. So they live with unity, they do not fight with each other, they take care of their young ones, यानी कि छोटे बेबीज का वो ध्यान रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना नहीं है, ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट. हाउ डू यू लिव विथ योर फैमिली, हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द वर्क, यानी कि आप अपने फैमिली में कैसे रहते हो, आप अपना वर्क कैसे डिवाइड करते हो, ये आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. सो अवॉइड दैट क्वेश्चन. नाउ स्टेट द बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन दैट स्टे इन जॉइंट फैमिलीज. तो जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको बेनिफिट्स क्या है? They learn to respect elders, okay, they will learn to respect elders, okay. Okay, let me put the screen down. Okay, fine. So they learn to respect elders, यानी कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं. They learn to help family members, यानी कि फैमिली मेंबर्स का हेल्प करना सीखते हैं. Child will not feel alone in absence of parents, यानी कि जब पेरेंट्स बाहर जाते हैं तब दूसरे मेंबर्स फैमिली में होते हैं, एंड दे विल नॉट फील अलोन, ओके, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स. They will learn manners, so they are going to learn good manners. So these are the advantages, or you can say benefits, when children stay in joint families. We know the meaning of joint families, right? A family which contains grandparents, uncles, aunties, parents, then cousins and siblings. It is a big family, okay. What benefits do animals get by staying in herds, यानी कि ग्रुप में रहने से एनिमल्स को क्या बेनिफिट्स रहेगा? यूनिटी फॉर्म्स अमोंग द मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स के बीच में यूनिटी रहेगी. मीन्स दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर, ओके, विदाउट फाइटिंग विथ ईच अदर, ओके. कभी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, ओके. दे विल फील सेफ एंड सिक्योर, उनको सेफ्टी और सिक्योर्ड फील होगा. दे विल हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्टीज, यानी कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो एक दूसरे को वो हेल्प करेंगे. देयर विल बी डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, यानी कि वर्क डिवाइड हो जाएगा. आधे लोग खाना पकाने का काम करेंगे, आधे लोग फूड सर्च करने का काम करेंगे, आधे लोग बेबीज का ध्यान रखेंगे. खाना पकाना तो दूर की बात है, बिकॉज दे विल गो फॉर सर्च ऑफ फूड. हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो दे विल गो फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, दे विल टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, यानी वर्क डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. राइट 5 to 7 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट एनिमल. सो ये भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है. अगर आपको लिखना है तो आप कोई भी अपना फेवरेट एनिमल ले लीजिए, उसके ऊपर 5 to 7 sentences लिख लीजिए. So this also you don't need to write, okay. In if you want to write the answer, you can write it by yourself. Now question number 7. Find and write the relationship of the following family members. रश्मिन भाई is कुलदीप्स काका, यानी कि रश्मिन भाई है वो कुलदीप के काका है. So how is कुलदीप्स father related to रश्मिन भाई? यानी कुलदीप के काका कौन थे? रश्मिन भाई, ओके. तो कुलदीप के पापा और रश्मिन भाई के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? So they both are brothers, okay. So कुलदीप्स father is रश्मिन भाई's elder brother, यानी कि कुलदीप के जो पापा है वो रश्मिन भाई के बड़े भैया है, ठीक है. नीरव भाई सन धैर्य कॉल्स कल्पना बेन एज दादी, यानी कि नीरव भाई का जो लड़का है वो कल्पना बेन को दादी बुलाता है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कल्पना बेन एंड नीरव भाई? यस, कल्पना बेन इज नीरव भाई's मदर, ओके. तो जो नीरव भाई का जो लड़का है, राइट, वो कल्पना बेन को दादी बुलाता है. तो हमें इसे क्या मालूम पड़ता है कि नीरव भाई की मम्मी कौन है? कल्पना बेन है, इसलिए वो दादी बुलाता है. कौन बुलाता है दादी? धैर्य. Jayashreeben's son Sudeep calls Januben as Masi. So what is the relation between Januben and Jayashreeben? यानी कि सुदीप जो लड़का है वो जानुबेन को मासी बुलाता है, और सुदीप किसका लड़का है? जयश्रीबेन का लड़का है. तो जानुबेन एंड जयश्रीबेन आर सिस्टर्स, वो दोनों सगी बहनें हैं, राइट. अमृतलाल इज तरंग्स दादा, यानी कि अमृतलाल तरंग के दादा है. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमृतलाल एंड तरंग्स फादर, यानी तरंग के पापा और अमृतलाल के बीच में कौन सा रिलेशन है? तरंग किसका बच्चा है? राइट, यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ है, पर हमें इतना मालूम है कि अमृतलाल तरंग के दादा है. तो अमृतलाल is Tarang's father's father. Okay, so
अमृतलाल कौन है? तरंग के जो पापा है उसके एक पापा है. Okay, so अमृतलाल is dada and Tarang is grandson. Okay everyone, and the now last part में हम जाएंगे. Okay, सविताबेन is जागूबेन's mother, यानी सविताबेन जागूबेन की मम्मी है. Then what will जागूबेन's daughter कोमल call सविताबेन? Okay, या जागूबेन की लड़की कौन है? कोमल है. और जागूबेन के मम्मी कौन है? सविताबेन है. तो जागूबेन सविताबेन को क्या कह के बुलाएगी? यस, नानी कह के बुलाएगी. जागूबेन्स डॉटर कोमल will call Savitaben as Nani. So here I am stopping myself, and we will meet next time. We are going to have an introduction of our new chapter, the story of Amrita. And in between, we are going to have an activity also. If you want to see the activity, you can join online classes. So till then, bye bye and have a nice time.